ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਸਦਾ 7ਵਾਂ ਭਾਗ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਯੂਹੰਨਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਸਦਾ 9 ਵਚਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਬੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਨਨ ਕਰੀਏ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੋ ਆ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇੱਕ ਠੋਸ ਦਾਅਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਆ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਉਹ ਆ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ, ਇੱਥੇ 2 ਰੀਜ਼ਨ ਲਿਖੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਬੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰੀਜ਼ਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਅਗਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਜਨਮਿਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦਾਵਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦਾਵਾ ਯੂਹੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦਾਵਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਯੂਹੰਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਕਿ ਆ ਵਚਨ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮੇ ਆ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਹੰਨਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸੇ ਹੀ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਯੂਹੰਨਾ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਸਦਾ 6 ਵਚਨ ਨੂੰ 5-6 ਵਚਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਵਚਨ 'ਚੋਂ ਲਿਖਦਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸਕੇ ਸੁਭਾਅ ਮੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਯੂਹੰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਆ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਯੂਬ 34 ਅਧਿਆਇ ਉਸਦਾ 10 ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਦੁष्टता का काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਆ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਹੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਹਬਕੂਕ 1 ਦਾ 13 ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪ ਕਰੇ, ਬੁਰਾਈ ਕਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਉਸ ਬੀਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੂਹੰਨਾ ਲਿਖਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਪਾਪ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀਵਿਤ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
उस समय साडा आत्मिक मनुख जो आ वो उस एक राजे दे समान आ जो अपने एक गढ़ दे विच बैठा हुंदा आ, अपने किले दे विच बैठा हुंदा है। क्योंकि अगर एक विरोधी ने अगर इस राजे नूं हराउणा हुंदा आ जिहड़ा अपने गढ़ विच बैठा आ, अपने किले च बैठा आ, एक चार दीवारी दे अंदर बैठा आ, तो उहदे वास्ते उस राजे तक पहुंचण लई सब तो नंबर एक की हुंदा आ, उसनूं उसदे गढ़ नूं ढाउणा पेगा, उसकी चार दीवारी नूं तोड़ना पेगा या उसनूं गिराउणा पेगा। जिस प्रकार तुसी देख सकते हो यहोशुआ दी पुस्तक 6वें अध्याय च जिस समय इसराइलियां ने यरीहो नूं फतेह करना सी तो उसकी एक चार दीवारी सी जो पकियाई दे नाल लिखिया बंद कीती हुई सी। सो उस यरीहो नूं जितन वास्ते इसराइल नूं उसका चार दीवारी जो आ गिराउणा जरूरी सी और परमेश्वर ने उस चार दीवारी नूं गिराया और फिर इसराइल उसनूं जित सकिया। इसे प्रकार असीं परमेश्वर दे वचन चों देखदे हां कि साडा गढ़ की आ, साडा स्ट्रॉन्ग होल्ड की आ। प्रभु दे वचन च लिखिया 18 ज़बूर च प्रभु दा दास दाऊद लिखदा आ कि यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ अते मेरा छुड़ाउण वाला है, मेरा परमेश्वर, मेरा टिल्ला जिसदी शरणी मैं आया हाँ, मेरी ढाल, मेरे बचाओ दा सिंह अते मेरा उच्चा गढ़। सो इस जगह दे उत्ते दाऊद किसनूं अपना गढ़ बोल रहा है? परमेश्वर नूं। किसनूं अपना टिल्ला बोल रहा? परमेश्वर नूं। किसनूं अपनी ढाल बोल रहा? परमेश्वर नूं। क्योंकि जिस समय एक विश्वासी अपने समर्पण ते खड़ा आ, जिस समय वो परमेश्वर दा वचन नूं अपने अंदर जगह दे रहा है, जिस समय वो वचन जीवित है उहदे अंदर, उस समय वो परमेश्वर खुद साडी ढाल हो जाता है। उस समय वो परमेश्वर साडा उच्चा गढ़ हो जाता है, वो परमेश्वर ही साडी चार दीवारी हो जाता है। और जदों असीं पढ़दे हां जकरिया नबी 2 अध्याय उसका 5 वचन असीं पढ़दे हां तो इस जगह दे उत्ते की लिखिया, मैं उसते दुआले उसते लिए अग दी कंध होवांगा अते उसते विच प्रताप लई होवांगा, यहोवा दा वाक है। सो परमेश्वर अपने दास जकरिया दे राही इसराइल नूं की बोल रहा है? एक तसल्ली दे रहा है, क्योंकि इस समय परमेश्वर दे जो दास जरूबाबल और यहोशुआ जाजक जदों बाबल देश की गुलामी तो वापस आके जदों इन्होंने परमेश्वर दे भवन नूं बनाउणा शुरू किया तो उस समय बहुत सारे विरोधियों ने जो आ इन्हां नूं रोकण दी कोशिश की। बहुत सारे विरोधियों ने इन्हां दे विरुद्ध जो आ योजनावां रचनियां शुरू कर दित्तियां और इस जो आ थोड़ा घबरा के डर गए और वो काम काफ़ी लंबे समय तक जो आ 16 साल तक जो रुकिया रहा। और उस स्थिति दे विच परमेश्वर जो आ जकरिया नबी नूं खड़ा कर रहा है, उसते राही परमेश्वर इसराइल नूं बोल रहा है कि मैं जो आ तुहाडे दुआले जो आ एक अग दी कंध होवांगा। मतलब तुहानूं किसी विरोधी तो डरन दी जो आ जरूरत नहीं आ, चाहे किन्ने भी विरोधी आ, चाहे कुछ भी है, पर जो तुहाडी दीवार होएगी, जो चार दीवारी होएगी, जो तुहाडी सुरक्षा होएगी, वो कोई कंधां दी जो इट्टां दी कंध नहीं होएगी, वो कोई पत्थरां दी चार दीवारी दी जरूरत नहीं है, बल्कि परमेश्वर कह रहा कि मैं एक अग दी कंध दी न्याय मैं तुहाडी चार दीवारी होवांगा। मतलब कोई भी विरोधी इस कंध नूं पार करके तुहाडे तक नहीं आ पाएगा। सो यही हुंदा है एक विश्वासी दी तसल्ली, ये हुंदा एक विश्वासी दा एक संतुष्टि और दिलेरी। और जो साडा नवे सिरे तो जन्म पाया आत्मिक मनुख आ, उसके विषय च जो प्रभु दा वचन जो दावा कर रहा है कि वो पाप नहीं करता, वो नहीं कर सकता, क्योंकि कोई पाप की ताकत, चाहे वो अंधकार की ताकत, चाहे कोई भी आ, वो उससे तक नहीं पहुंच सकती, वो उसनों अपने कब्जे च नहीं लै सकती, क्योंकि परमेश्वर खुद जो आ उसकी एक बाउंड्री है, एक अग की कंध, एक प्रताप की कंध है। सो जदों तक असी खुदा दे वचन च कायम है, जदों तक असी एक समर्पण, एक सच्चाई और एक पवित्रताई च कायम है, उस स्थिति च उस समय तक जो आ साडे अंदर दी एक दिलेरी की आ, उस समय तक साडी एक संतुष्टि की आ कि मैं जिस चार दीवारी च आ, वो चार दीवारी कोई कंधां दी नहीं, वो चार दीवारी कोई इट्टां पत्थरां दी नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही मेरी चार दीवारी है। वो परमेश्वर मेरा गढ़ आ, वो परमेश्वर जो आ वो एक मेरा बुर्ज आ।
प्रभु के वचन च लिखिया है, कहावतां दी पुस्तक 18 अध्याय उसका 10 वचन विच लिखिया है कि यहोवा दा नाम एक पक्का बुरज है और धर्मी जांदा और उसदे विच बचिया रहिंदा है। सो इस करके जदों एक व्यक्ति जदों तक इस किले च इस गढ़ च दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो इस गढ़ नूं ढा सके, कोई ऐसा अंधकार दी शक्ति दे कोल कोई ऐसा हथियार, कोई शस्त्र या कुछ भी ऐसी ताकत नहीं है जो परमेश्वर नाम दे गढ़ नूं ढा सके, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाम दे बुरज नूं गिरा सके, या उस परमेश्वर जो भस्म करने वाली आग आ उस अग दी चार दीवारी नूं जो है छेद के जो पार आ सके। जिस समय इसराइली मिस्र तो निकले, उस समय जो लाल सागर पार करने लिए खड़े सी, सो उस समय मिस्रिया ने जो पिछों दी हमला कर दिता, सो इसराइली डर गए और उस समय जो अग दा थंम सीगा वो इसराइलियां दे अगों उठ के जो आ वो मिस्रियां और इसराइलियां दे विचकार आके खड़ा हो गया और पूरी रात जो आ एक भी मिस्री जो आ उस अग दे थंम नूं पार करके इसराइलियां तक नहीं पहुंच सकिया। एक भी मिस्री सैनिक जो आ वो इसराइलियां नूं छू नहीं सकिया, क्योंकि इसराइल और मिस्रियां दे विचकार एक जो चीज खड़ी सी वो सी अग दा थंम। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही वो अग दा थंम सीगा और कोई भी ताकत उस थंम नूं पार नहीं कर सकी, चाहे वो मिलिटरी, चाहे वो आर्मी, चाहे किन्नी भी ताकतवर सी, किन्नी मेजोरिटी नाल सी, किन्नी वो पावर नाल सी, पर वो परमेश्वर नाम दे थंम नूं, उस अग दे थंम नूं पार नहीं कर सके। इस करके अज चाहे साडे आस पास किन्ना भी अंधकार चाहे वधदा जाए, चाहे पाप की ताकत चाहे किन्नी वधदी जाए, चाहे किन्ना भी अंधकार का प्रभाव वध रहा है, पर उस स्थिति च भी एक आत्मिक मनुख जो नवे सिरे तो जन्म पाया वो बहुत ही आराम नाल कंफर्टेबल वे नाल वो पवित्रताई दे मार्ग ते जो आ चल सकता है। उसनूं परमेश्वर दे नाल कदम ना कदम मिला के चलन च कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस तरह परमेश्वर दा दास जो आ वो लिखदा आ 119 जबूर उसका 32 वचन च लिखिया, जद तू मेरे मन नूं वधावेगा तद मैं तेरे हुक्मां दे मार्ग उत्ते दौड़िया जावांगा। सो इस जगह ते प्रभु दा दास दाऊद लिखता है कि हे परमेश्वर, चलो तू मेरे मन नूं वधाएगा तो मैं सिर्फ चलूंगा ही नहीं बल्कि मैं दौड़िया जावांगा। मतलब जेड़े राह दे उत्ते कई बारी चलना भी मुश्किल हो जाता है, पर वो दाऊद दावा करता है कि हे परमेश्वर, चलो तू मेरे मन नूं वधाएगा, चलो तू मेरे मन नूं स्टेबल करेगा, चलो तू मेरे मन नूं स्थिर करेगा। उस स्थिति दे विच हे परमेश्वर जिहड़े राह ते चलना कई बारी मुश्किल हो जाता है, उस राह दे उत्ते दौड़े जावांगे बड़े आराम नाल। सो जिहड़ा भी व्यक्ति अज एक्सक्यूज दिंदा आ कि मेरे को चलिया नहीं जाता पवित्रताई दे विच, मेरे को चलिया नहीं जाता अलगताई दे विच, मेरा चलना मुश्किल है, मैं चाहुंदा आ चलना पर मैं चल नहीं पाउंदा। सो जिहड़ा व्यक्ति इस प्रकार दे एक्सक्यूज जिहड़े क्रिएट करता है, उसके बहाने बनाउंदा आ या मजबूरियां अपनियां गिनाउंदा आ, सो वो दस रहा है कि वो आत्मिक मनुख नहीं है, वो नवे सिरे तो जन्म पाया होया मनुख नहीं है वो। क्योंकि जो नवे सिरे तो जन्म पाया मनुख आ वो कदी भी इस प्रकार नाल नहीं बोल सकता कि मैं चलना चाहुंदा आ पर मैं चल नहीं पाउंदा, बल्कि जो परमेश्वर दे वचन दे द्वारा नवे सिरे तो जन्म पाया आ वो व्यक्ति इस समाज के अगे चल के एक नमूना पेश करता है। जिस प्रकार परमेश्वर दा वचन जो आ प्रभु दे दास यूसुफ के बारे बयान करता है, उत्पत्ति किताब उसका 49 अध्याय उसका 23 वचन असीं पढ़ते हैं। उस जगह ते यूसुफ के बारे जो लिखिया कि तीर अंदाजा ने उसनूं सताया ਅਤੇ तीर चलाए ते उसदे नाल वैर रखिया, पर उसका धनुख तकड़ा रहा ਅਤੇ उसदियां बाहां ते हथ बलवंत हन याकूब दे शक्तिमान दे हथों। सो कहण दा भाव की है, इस जगह दे उत्ते यूसुफ दे जीवन च जो आ चाहे किन्ने भी तीर अंदाजा ने तीर चलाए, सब तो नंबर एक उसके भरावां ने उसनूं सताया,
और उस तो बाद विचारी आत्मा ने किस प्रकार पोटीफर दी पत्नी दे द्वारा हर दिन उसके उत्ते जो हमले किए, हर दिन जो उसनू विश्वास तो पवित्रता तो सुटन दे लिए जो जोर मारे, जो यत्न किया, पर प्रभु दा वचन जो गवाही दिंदा आ कि उसका धनोख तकड़ा रहा, उसदियां बाहां ते हथ बलवंत हन। वो किस तरह याकूब दे शक्तिमान दे हथों, मतलब सर्व शक्तिमान परमेश्वर दे द्वारा एक अजिही सामर्थ यूसुफ ने पाई, उसदे बाहां ने, उसदे धनोख ने, कि कोई भी ताकत जो है यूसुफ नू पवित्रताई तो अलगताई तो जो सुट नहीं सकी। चाहे कैद खाने दे विच आउण वाली कोई निराशा, चाहे किसी भी प्रकार का जो एक सतावट सी, पर यूसुफ नू गिरा नहीं सकी, क्योंकि वो कह चाहे किले दे विच उन्हें वास किया, कह चाहे ढाल नू लैके चलिया, जो परमेश्वर नाम की एक ढाल नू लैके चलिया। इसलिए अज सानू सब नू इस गल की जांच करन दी जरूरत आ, इस गल नू एनालाइज करन दी जरूरत आ कि असी किस प्रकार का मसीही जीवन जो आ जी रहे हैं, क्योंकि मसीही जीवन का जो असल अनुभव है, जो दा असल जो एक एक्सपीरियंस जो रियलिटी दे विच सानू मिलदा है, वो उस समय मिलदा है जदों असी वचन दे बीज दे दोबारा जो असी नवे सिरे तो जन्म असी पा लेंदे हैं। क्योंकि बिना नवे सिरे तो जन्म पाए असी कदी अजिही सुरक्षा नू अपने आत्मिक जीवन दे विच असी कदी अनुभव नहीं कर सकते। कोई भी विचार, कोई भी अंधकार की ताकत, कोई भी पाप की ताकत, अभिलाषा की ताकत जो आ बड़ी आसानी दे नाल सानू अपने कब्जे विच लै लैंदी आ, बड़ी आसानी दे नाल असी उसके पिछे चले जाने आ। उसकी वजह जो आ वो की आ, क्योंकि असी एक गढ़ दे विच वास नहीं कर रहे, असी एक किले दे विच वास नहीं कर रहे, बल्कि असी खुले रड़ दे विच आ, जिथों भी कोई भी आसानी दे नाल साडे ते हमला करके सानू कब्जे विच जो लै लैंदा है। सो अज असी समर्पण करिए अपने आप नू परमेश्वर दे अगे लैके आइए कि हे परमेश्वर, तुसी एक अजिहा मन प्रभु तुसी सानू दो, ताकि जिसका दाऊद नबी प्रार्थना करता है 119 ज़बूर दा 32 वचन च कि हे परमेश्वर, जब तू मेरे मन नू वधावेगा तां मैं तेरे हुक्मां दे मार्ग दे उत्ते दौड़िया जावांगा। इस प्रकार की प्रार्थना करन दी अज सानू जरूरत है कि हे प्रभु, जिन्हां राहां दे उत्ते चलना मुश्किल हो जाता है, पवित्रताई दे मार्ग बहुत कठिन लगते हैं प्रभु, पाप की ताकत बहुत आसानी दे नाल सानू दबा लेंदी है प्रभु, पर हे परमेश्वर, मैं अपना जीवन जो है मैं तेरे हत्थां च जो अर्पण करता है। मेरे परमेश्वर, मैनू एक नवे सिरे तो जन्म पाउण दा जो तुसी एक अनुग्रह मैनू दो, ताकि मैं भी उस सुरक्षा दे विच जीवन बतीत कर सकां, जिस प्रकार दाऊद जो दावे ना बोलदा, परमेश्वर मेरा गढ़ है, परमेश्वर मैं तुहानू अपना गढ़ बना के चल सकां। हे परमेश्वर, मैं भी उस चार दीवारी च वास कर सकां जिसकी चार दीवारी उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर खोदिया, ताकि कोई अंधकार की ताकत जो आ वो सानू छू ना सके, ताकि कोई पाप की ताकत साडे जीवन च प्रभुता ना कर सके। सो इस रीति नाल असी जो आ प्रार्थना करते हुए, इस प्रकार का समर्पण करते हुए असी परमेश्वर के राज्य के लिए असी तैयार होइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दा आउणा बहुत नज़दीक आ। सो परमेश्वर इस वचन दे राही सानू एक एक नू आशीष देवे। आमीन।